Once again, I welcome all of you to the Tuesday evening talk show on issues which are affecting quality of life of elders. We have been trying to pick up various issues related to different systems और हमारी कोशिश है कि हम एक वो वाला वर्ड ले जो कि शिकायत मानी जाती है लेकिन बीमारी नहीं होती. So today we are going to talk about a very common complaint of the elders कि हाय मेरी कमर गई. सुबह उठते हैं पलंग से ऐसे टेढ़े हो गए, अरे गई कमर गई यार. Very common complaint. But it has a number of reasons. And as we say, a back pain may not be a back pain. अब आप सोचेंगे कि Dr. Mishra, can you hear me now? Yes, sir, I can hear you. Can you hear me, sir? Okay, good. Welcome, Dr. Mishra. So I was just introducing the topic. So, Right, sir. जो जरूरी बात यह है कि बैक पेन एल्डर्स में बहुत कॉमन है, नंबर 1. नंबर 2, जो जरूरी बात है जो आज डॉक्टर मिश्रा के थ्रू हम जानेंगे कि हर कोई बैक पेन इज नॉट ए बैक पेन. ये सुन के आपको हैरानी होगी, लेकिन हर कोई तकलीफ जहां से महसूस होती है जरूरी नहीं कि बीमारी वही हो. ये बहुत जरूरी है एल्डर्स को समझने के लिए. तो आज हम बैक पेन की बात कर रहे हैं और हमारे साथ इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए वी हैव यंग डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा जी, who is a senior consultant in orthopedics specializing in spine and knee surgery. He is also the director at the Ashlok Hospital and is visiting consultant to many of the leading hospitals of Delhi. Dr. Mishra, we welcome you, and we are a group of youngsters जिनकी कमर जो है होगी 20 साल की, पर उस कमर का जो एक्सपीरियंस है वो 60 साल का. तो कमर की एक्सपीरियंस 60 साल की है, पर वो उसकी कमर की उम्र सिर्फ 20 साल. दैट्स द चैलेंज वी हैव. और मुझे याद है मेरे किसी एल्डर को मैंने कहा था कि क्या तकलीफ है, तो उन्होंने कहा तकलीफ क्या बताऊं, मन और दिमाग 25 साल का है, शरीर साला 70 साल का हो गया. So it is a challenge to keep your body at pace with your mind and your heart. And that is the challenge for elders. So Dr. Mishra, welcome. And you are free to speak in any language that you want. ये ऐसे youngsters हैं कि सारी बोलियां समझते हैं. Welcome, Dr. Arora. Sir, thank you, sir. Sir, can we start? Can you hear me, sir? Hello? Yes, please, go ahead. जी हाँ, सुनाई दे रहा, आवाज आ रही है. So, thanks for giving me an opportunity to such a wonderful audience, all young. सारे young लोग हैं, sir. It's good to see young people. And as they say, age is a state of mind. So, that is the first and foremost thing. So, with mind, so many things can be, so many problems can be overcome just with the mind. So, as you introduced, sir, the topic for today is back pain. So, I won't let it be very, a theoretical kind of thing. So, I'll just skim through the slides very quickly so that we get a brief idea what we are talking about and what is the scientific basis to it. तो स्लाइड्स ना मैं एक स्लाइड्स हम जल्दी इसको देख लेते हैं. उसमें कहीं आप रुकने की जरूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा. जस्ट लेट मी नो वेयर वी नीड टू स्टॉप. सो दिस इज जस्ट टू ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट. आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, ज्यादा भी आइडिया हो, पर इन स्लाइड से एक साइंटिफिक बैकग्राउंड, एक साइंटिफिक बेसिस हमें मिल जाएगा जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो बैक पेन इज लाइक वन ऑफ द कॉमनेस्ट इश्यूज और कॉमनेस्ट कंसर्न्स which is experienced by elderly people.
now the definition of elderly is changing day by day. Like अब जो एज का क्राइटेरिया है elderly के लिए बढ़ता ही जा रहा है. So honestly, I would not say elderly. So basically, it's the physiological age which matters, not the chronological age. So what I'm trying to say is, chronologically हो सकता है आप या मैं 60 साल, 70 साल, 80 साल का भी हूँ, पर दिल के अलावा अगर शरीर जवान है तो वो 60, 70, 80 नहीं, वो 40, 50 साल हो जाता है. So what I'm trying to say here is like this is just an extension of this saying that age is a state of mind. So physical status is also to an extent a state of mind, and if we keep ourselves healthy, then we are always able to achieve. So I'll just go through these slides. So basically this spine, some point, and in between the vertebra you have this disc या cushion या spring या shock absorber. बहुत सारी चीजें कहते हैं डिस्क आप लोग हम सब ने सुना हुआ है कि डिस्क की प्रॉब्लम होती है या गद्दी खिसक जाती है तो उससे नस का दर्द शुरू होता है, बैक का पेन शुरू होता है. सो दिस इज व्हाट द डिस्क लुक्स लाइक, एंड डिस्क इज 90% वाटर. इट एक्ट्स एज अ कुशन, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. और इस तरफ जो डायग्राम्स बने हुए हैं बेसिकली ये इंडिविजुअल वर्टिब्रा अलग अलग एरिया के कैसे लगते हैं. ये गर्दन के आसपास का वर्टिब्रा ऐसा दिखता है, जो अपर बैक है उसके आसपास का वर्टिब्रा ऐसा दिखता है. एंड दिस इज व्हाट द वर्टिब्रा लुक्स लाइक इन द लोअर एरिया, in the lumbar area, what you call lumbosacral spine. So what I would like to, so this is called spinal canal, and as you can see, जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये स्पाइनल कैनाल का डायमीटर, ये जो छेद है ये बड़ा होता जाता है. कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है. तो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को कम जगह है उसके पैसेज के लिए, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को ज्यादा जगह मिलती है उसी पैसेज के लिए. एज के साथ क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं. बेसिकली हड्डी कहते हैं ना, हड्डी बढ़ गई है, ये स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस होते हैं. तो उसकी हड्डी बढ़ने से क्या होता है, ये स्पाइनल कैनाल का डायमीटर कम हो जाता है. द एरिया थ्रू व्हिच दिस स्पाइनल कॉर्ड इज पासिंग, सपोज दिस इज द स्पाइनल कैनाल and this is the spinal cord. So normally spinal cord is passing through a very thick, nice diameter area, and as we age, this spinal canal diameter it reduces. So you can automatically deduce what is going to happen. There is going to be pressure on this spinal cord, and as the pressure on the spinal cord or the nerves increase, so again, like this is a very technical thing, but we can just skip it. What I just want to show is this is the spinal cord, and these are the nerves which exit from the spinal cord, and these are the nerves. They're like electric wires. They go to the different parts in the body. They go to the back, they go to the legs. And suppose there is a compression in this area, proper spinal cord, then mostly it presents with backache, whereas it can present as pain in the leg. What we call this disc or whatever structure, it starts compressing on the nerve, and this nerve which is going to the leg, we might feel vague sensations or pain in that area. Now, so this is the curve of the spine. This is how the spine looks like. This is again a diagrammatic representation of the vertebra. Like these are the bones. These are the bones, and in between this is the disc. So this is a very brief outline, and so we just skip these things and we go to the main. So you see the common things I would like to show you, which we should be like. This is a MRI finding, और ये actually जो चीजें जो होती है. So basically we can see that like first let's talk about the causes of back pain in elderly. So this is one of the commonest causes of back pain in the elderly, and you can see this is something called listhesis. So basically जब elderly की बात करें तो most of the issues are related to degeneration, और हम तीन चीजों की बात करेंगे अभी. बैक पेन बहुत सारे रीजन से हो सकता है, बट यूजुअली यंग लोगों में किसी और रीजन से होता है और एल्डरली लोगों में किसी और रीजन से होता है. सो जब हम एल्डरली लोगों की बात करते हैं, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट रीजंस और द मोर कॉमन रीजंस ऑफ बैकएक इन एल्डरली. सो तीन चीजें होती है. वी हैव टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स. वन इज डीजनरेशन, व्हिच इज जस्ट लाइक एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर. दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ बैकएक इन एल्डरली. Second is osteoporosis, which is a weakness of the bones. All of us must have heard about it. And osteoporosis is a very common cause of back pain in elderly. So osteoporosis, what happens? Osteoporosis, what does it cause? Mishra Basically, ji, suppose this is the... Dr. Mishra, Hi, sir. my request, if you can speak more in Hindi, please. अच्छा, right, sir. So basically हम बात कर रहे हैं कि बैक एक जो है यंग लोगों में भी होता है,
इनफैक्ट कई बार बच्चों या एडोलसेंट्स में भी होता है, और बैक एक एल्डरली में भी बहुत कॉमन है। सो हम बहुत बजाय बहुत ग्लोबल होने के, अभी हम सिर्फ एल्डरली लोगों के बैक पेन की बात करेंगे। और जब हम एल्डरली लोगों में बैक पेन की बात करते हैं तो 3-4 बहुत कॉमन इश्यूज होते हैं, 3-4 बहुत कॉमन रीजन होते हैं जो एल्डरली लोगों में बैक पेन करते हैं। और उसमें से हम किस चीज को अवॉइड कर सकते हैं या किस चीज को ट्रीट कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो अनट्रीटेबल होती है और कुछ चीजें कंप्लीटली ट्रीटेबल होती है। सो वी हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स जो अवॉइडेबल है, जिनको हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, और उन चीजों को हम काफी हद तक ट्रीट भी कर सकते हैं। तो जब एल्डरली लोगों की बात करें तो सबसे पहले तो एक डीजनरेशन है विच इज लाइक एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर। सो जैसे घुटने में कहते हैं ना ग्रीस कम हो गया या चिकनाई कम हो गई या हड्डी बढ़ गई, तो उसी का काउंटर पार्ट स्पाइन में भी होता है जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो घुटने में हम उसको आर्थराइटिस कह देते हैं, और लंबर स्पाइन में या सर्वाइकल स्पाइन में उसको हम स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो ये वही प्रक्रिया है जो घुटने में होती है। जैसे घुटने में चिकनाई कम हो जाती है या कार्टिलेज कम हो जाता है या कहते हैं ना गैप आ गया है या हड्डी बढ़ गई है, तो वही चीज स्पाइन में होती है, तो उसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। सो बेसिकली जैसे घुटने में चिकनाई होती है, कार्टिलेज होता है, वैसे ही वर्टेब्रा में डिस्क होता है। और जैसे एज के साथ कार्टिलेज कम होता है या चिकनाई कम होती है घुटनों में या कूलों में, वैसे ही स्पाइन में ये जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो डिजेनरेट कर जाता है। डिजेनरेशन मतलब क्या, उसका स्प्रिंगीनेस या उसका शॉक एब्जॉर्बर का काम या उसका कुशनिंग का काम वो कम हो जाता है। और वो डिजेनरेशन का पार्ट एंड पार्सल है, ये एजिंग का पार्ट एंड पार्सल है। ये सब में होता है, कुछ लोगों में थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ लोगों में थोड़ा कम होता है। और जब डिस्क डिजेनरेट कर जाता है तो जो बैकबोन की जो लोड लेने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और उस केस में मूवमेंट्स या चेंजिंग ऑफ पोजीशंस, दीज थिंग्स दे बिकम अ बिट पेनफुल। So basically, this is just a generalized degenerative change, which we call spondylosis, which I would say is the commonest cause of back pain in elderly. So elderly लोगों में back pain का जो commonest reason है वो age related wear and tear है। यहाँ पे हम age related wear and tear को 100% तो रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पर हमारा आइडिया है कि उससे जो हमें सिम्टम्स हो रहे हैं वो कम हो जाए। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है? रेगुलर एक्सरसाइजेस, अडॉप्टिंग करेक्ट पोस्चर, और अर्गोनॉमिक्स पे, जैसे सपोज आप काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं या आप गार्डनिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारा पोजीशन या पोस्चर सही होना चाहिए। अगर हमारे घुटने में कोई समस्या नहीं है और बैक में पेन है, देन वी शुड ट्राई टू बेंड ऑन द नीज रादर देन हम घुटनों पे मुड़े, झुके, बजाय कि स्पाइन पे सीधा झुकने के, ताकि स्पाइन पे कम लोड पड़े। और रेगुलर वॉक और रेगुलर एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम वॉक और एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो वी कीप आवर मसल्स टोन्ड, हम अपने बैक के मसल्स को टोन्ड रख रहे हैं। अगर मसल्स टोन्ड रहते हैं तो जो डीजनरेशन की वजह से हमारा डिस्क पेन दे रहा है हमें, वो कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लोड फिर मसल्स पे आता है, वो डिस्क पे या वर्टेब्रा पे कम लोड आता है, तो पेन होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम एक्सरे कराते हैं पेशेंट का, और एक्सरे बहुत खराब होता है, लाइक बहुत ही डिजेनरेटेड स्पाइन होता है, पर पेशेंट को सिम्टम्स उतने ज्यादा नहीं होते, हल्का फुल्का पेन होता है। और हम किसी और वजह से एक्सरे करा रहे हैं, हम देखते हैं कि ओह ये तो स्पाइन बिल्कुल टेढ़ी हो रखी है और एकदम स्पॉन्डिलोसिस है, पर पेशेंट को ज्यादा सिम्टम नहीं होते हैं। सो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमेशा जो है जो वेयर एंड टेयर हमेशा पेनफुल नहीं होता, ये एक्सरे फाइंडिंग हमेशा कोरोबरेट नहीं करती है। तो बेसिकली हमें सिम्टम्स को ट्रीट करना है, ना कि एक्सरे को ट्रीट करना होता है। अगर सपोज किसी का एक्सरे बहुत खराब भी है, या सपोज आपको 5 साल 10 साल 15 साल पहले कभी बैक पेन रहा हो और आपने उस समय एक्सरे कराया हो और आपके डॉक्टर ने कहा हो और आपका स्पाइन तो बहुत ही खराब है, पर उसके बाद आपका पेन चला गया है धीरे धीरे करके, कई बैक पेन्स ना यूजुअली एपिसोडिक होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि किसी को अगर एक बार बैक पेन हुआ तो जिंदगी भर रहेगा। यूजुअली क्या होता है कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते में वो पेन कम हो जाता है ग्रेजुअली, और पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। तो basically we need to think and get concerned about the symptoms, about like the pain or the disability which it is causing. हमें एक्सरे फाइंडिंग पे ज्यादा ध्यान उतना नहीं देना होता जितना अगर जब तक कि वो बहुत सिम्टोमेटिक ना हो। सो अगेन घूम फिर के सारी बात वहीं पे आ जाती है कि हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें अपने एक्टिविटीज को पेन के हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। अगर किसी वजह से कभी दर्द बढ़ा हुआ है, कुछ समय के लिए दर्द बढ़ा हुआ है, तो उस समय हमें एक्सरसाइज नहीं करना होता है, हमें वॉक भी थोड़ा कम रखना होता है। बेसिकली हमें अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट देना होता है ताकि वो पेन का एक्यूट एपिसोड खत्म हो जाए। एंड एज वी इम्प्रूव, एज द पेन गोज डाउन, एज द पेन गोज अवे, then we need to indulge in exercises to strengthen the back muscles to keep our back healthy. अब क्या होता है कि
डिजेनरेशन की वजह से क्या होता है कि हड्डी कई बार अपनी जगह से थोड़ी बहुत हिल जाती है। जैसे यहाँ आप देखें नॉर्मल डिस्क, नॉर्मल स्पाइन में क्या होता है, ये वर्टेब्रा एक दूसरे के साथ अलाइंड होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आखिरी वाला जो वर्टेब्रा है वो पीछे खिसका हुआ है। सो दिस इज अगेन अ कॉमन हैपनिंग विथ, ये कई बार एजिंग के साथ या डिजेनरेशन के साथ होता है, इसको लिस्थेसिस कहते हैं। और एल्डरली लोगों में जो लिस्थेसिस होता है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। एल्डरली लोगों में जो लिस्थेसिस होता है यूजुअली डिजेनरेशन की वजह से होता है। बट देन अगेन द सेम थिंग, माइनर लिस्थेसिस यूजुअली कभी प्रॉब्लम नहीं करता, उसके लिए कोई इंटरवेंशन या सर्जरी भी नहीं सजेस्ट करते हैं। अगर लिस्थेसिस बहुत सीवियर हो, जैसे इस केस में लिस्थेसिस है, तो उस समय हम सर्जरी कंसीडर करते हैं और सर्जरी का फायदा भी होता है। बट माइनर लिस्थेसिस जैसे ग्रेड 1 लिस्थेसिस है, इसमें सर्जरी का बहुत ज्यादा रोल, रादर आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग सर्जरी का कोई रोल है नहीं। सो जस्ट कीपिंग फिट, जस्ट कीपिंग हेल्दी, जस्ट डूइंग अ bit of exercises and just taking care of the posture ensures that we are not troubled by pain, हमें दर्द नहीं हो despite the fact कि हमें थोड़ा डिजेनरेशन है या थोड़ा लिस्थेसिस है। फिर हम डिजेनरेशन के बाद हम दूसरे कॉज पे जाते हैं जो कि बैक पेन का बहुत कॉमन कॉज होता है इन एल्डरली, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट। डॉक्टर मिश्रा, बिफोर यू प्रोसीड, एक क्वेश्चन था कि हां सर, कि डिजेनरेशन इज इन द बोन और मसल, ये क्लैरिफाई कर सो देंगे? डिजेनरेशन हैपेंस, यू सी, मसल का सर डिजेनरेशन जो है दैट इज मोर अकिन टू वीकनिंग। मसल्स थोड़ी कमजोर होती हैं, थोड़ी एट्रोफी होती हैं एल्डरली लोगों में, दिस इज अ नॉर्मल पार्ट। जैसे हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है तो हमारी बाजू की मसल्स या हमारी पैर की मसल्स थोड़ी पतली पड़ती हैं। वो दिस इज अ वेरी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ये हर एक आदमी ऑब्जर्व करता होगा कि भैया ये टांग की पिंडलियां जो है। डिजेनरेशन सिर्फ हड्डी की होती है। सॉरी सर, डिजेनरेशन एग्जैक्टली, दैट्स यस यस। सो बेसिकली जो वेयर एंड टेयर है वो बोन्स और डिस्क का हो रहा है, मसल्स थोड़ी कमजोर पड़ती है। कमजोर मसल्स का ऐसा डिजेनरेशन नहीं होता है, राइट? प्लीज, मसल्स का एट्रोफी, सो यू कैन से एट्रोफी नॉट डिजेनरेशन। सो मसल की थोड़ी एट्रोफी होती है, मसल का डिजेनरेशन नहीं होता है। डिजेनरेशन हड्डी का होता है या डिस्क का होता है। तो हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके उस डिजेनरेशन को कुछ हद तक हम उसके बैड जो इफेक्ट्स है उसको हम निगेट कर सकते हैं, उसको हम नलीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिजेनरेशन या एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज की बात हो रही थी। जो दूसरा बहुत कॉमन कॉज है एल्डरली लोगों में बैक पेन होने का, वो ऑस्टियोपोरोसिस है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस वी ऑल, हम सब ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमने सुना हुआ है, हम जानते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस इज अगेन एन इनएविटेबल कंपोनेंट ऑफ एजिंग। एजिंग के साथ थोड़ा बहुत ऑस्टियोपोरोसिस होना बहुत ही नॉर्मल है। अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स आर मोर प्रोन टू गेट ऑस्टियोपोरोसिस। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं या कुछ जेनेटिक चीजें होती हैं। फीमेल्स स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स लाइक 45, 50, 55, 60, 65 के बाद फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है, जो हड्डी की थिकनेस या विड्थ सपोज इतनी ज्यादा है तो हड्डी मुलायम हो जाती है, और हड्डी मुलायम या कमजोर हो जाती है तो वो थोड़ा पिचकना शुरू हो जाती है। जिस हड्डी की हाइट इतनी होनी चाहिए, ये सपोज नॉर्मल वर्टेब्रा की हाइट है, ऑस्टियोपोरोसिस से उस वर्टेब्रा का हाइट कम हो जाता है। तो वर्टेब्रा के हाइट के कम होने से क्या होता है, स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व समझ लीजिए ये है, तो हड्डी के पिचकने से क्या होता है, वो स्टूपिंग पोस्चर आ जाता है। कई लोग एज के साथ ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़ा झुकने की टेंडेंसी हो जाती है। तो वो दो वजह से होता है, एक तो जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियां थोड़ी पिचक रही हैं उसकी वजह से स्टूपिंग पोस्चर होता है, और दूसरा कई बार क्या होता है, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड लंबर कैनाल स्टेनोसिस। उसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ, हम जिसकी बात कर रहे थे कि एज के साथ वो कनाल जिससे नर्व जा रही है उसका डायमीटर कम हो गया है। तो उसके डायमीटर कम होने से क्या होता है, नर्व पे प्रेशर पड़ने लगता है। तो सपोज ये हमारी नर्व है, ये हमारी नर्व है और ये हमारा कनाल है, और इस पे प्रेशर पड़ रहा है। तो झुकने से क्या होता है, सपोज हम झुक गए हैं तो झुकने से वो प्रेशर नर्व पे कम हो जाता है। तो कई बार एल्डरली लोगों में टेंडेंसी होती है झुक के रहने की, तो वो दो वजह से होती है, या तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो डिफॉर्मिटी आ रही है स्पाइन पे उसको काइफोटिक डिफॉर्मिटी कहते हैं, या दूसरा कई बार क्या होता है, अगर नस पे जोर पड़ रहा है तो उस नस को दबाव से बचाने के लिए शरीर अपने आप थोड़ा सा झुकना पसंद करता है ताकि दर्द में रिलीफ रहे, दैट इज कैनाल स्टेनोसिस। सो we should try to keep our posture correct as much as possible। वो हम उसके लिए कई ब्रेसेस आते हैं, बेल्ट वगैरह भी आते हैं, उसको यूज करके हम सीधा रख सकते हैं। और नॉर्मली भी सबकॉन्शियसली एक एफर्ट रहना चाहिए कि वी शुड बी सिटिंग स्ट्रेट, वी शुड बी वॉकिंग स्ट्रेट, वी शुड ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स अपराइट। सीधा रखने की कोशिश करते हैं
तो स्पाइन का पोस्चर यूजुअली सही रहता है और प्रोग्रेसिव जो डिफॉर्मिटी बढ़ने की टेंडेंसी होती है वो कुछ हद तक, काफी हद तक कम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में अच्छी बात यह है कि आज के डेट में कई सारी मेडिसिन, कई इंजेक्शंस भी हैं जो रेडिली अवेलेबल है, और उनसे हम ऑस्टियोपोरोसिस को न सिर्फ बढ़ने से रोक सकते हैं बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस को काफी हद तक ट्रीट भी कर सकते हैं, काफी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस रिवर्स करने वाले जो मेडिसिन हैं वो अभी लास्ट कुछ साल से मार्केट में आई है। प्रोबेबली आप लोगों में किसी ने यूज किया होगा। मोस्टली इंजेक्टेबल फॉर्म में एक डेनोसुमैब करके दवा आती है जो हर एक 6 महीने पे लगता है, या फिर टेरिपेराटाइड करके एक हार्मोनल प्रिपरेशन है, वो डेली लगाना होता है। तो ये सब मेडिसिन यूज करने से ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो बैक पेन हो रहा है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बट ऑस्टियोपोरोसिस की किसी भी दवा शुरू करने से पहले कैल्शियम और विटामिन डी, ये तो बहुत नॉर्मल दवा है, ये तो आप लाइक इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रिस्क्रिप्शन। और कैल्शियम और विटामिन डी लेने के लिए एक एज के बाद वी शुड नॉट बी लाइक आई मीन डिपेंडेंट ऑन सम प्रिस्क्रिप्शन, लाइक इन अ फेजिक मैनर। सपोज 3 महीने 4 महीने के लिए कैल्शियम लेना और हर एक महीने विटामिन डी लेना, भी हम अपने आप भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा डॉक्टरी सलाह की जरूरत नहीं है। पर ऑस्टियोपोरोसिस की जो दूसरी दवाइयां हैं जैसे ये इंजेक्टेबल्स वगैरह हैं, वो शुरुआत करने से पहले हमेशा एक डेक्सा स्कैन या बोन डेंसिटोमेट्री का होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मेरे जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल्स, एल्डरली फीमेल्स हु आर मोर देन 60, एडवाइज देम टू अंडरगो, मैं उनको यूजुअली हमेशा एक डेक्सा स्कैन करने के लिए बोलता हूँ। डेक्सा स्कैन नॉर्मल भी है तो हमारे पास एक बेस लाइन डेक्सा स्कैन है। सपोज आज से 5 साल 10 साल बाद कोई बैक पेन होता है या कोई और इश्यू होता है, तो हम उस डेक्सा स्कैन से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि हमारा ऑस्टियोपोरोसिस कितना प्रोग्रेसिव है, कितनी गति से बढ़ रहा है या कितना खराब हो रहा है। एंड देन वी कैन स्टार्ट लाइक जो भी ऑस्टियोपोरोसिस की स्पेशलाइज्ड दवाइयां हैं हम उस हिसाब से शुरू कर सकते हैं। सो बेसिकली ये बात रही डिजेनरेशन की। दूसरी बात होगी ऑस्टियोपोरोसिस की, जो कि दो बहुत कॉमन कॉज है जिनकी वजह से बैक पेन होता है एल्डरली लोगों में। जो तीसरी चीज एल्डरली लोगों में बहुत कॉमनली बैक पेन कॉज करती है डिजेनरेशन और ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा, और जो अगेन आई मीन दिस इज लिटिल सीरियस, ये थोड़ा सा ज्यादा है। देयर आर सर्टेन कैंसर्स, देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स विच टेंड टू हैपन आफ्टर अ सर्टेन एज। मतलब कुछ ऐसे ट्यूमर हैं या कुछ ऐसे कैंसर हैं जो यूजुअली 60 65 70 साल के बाद होते हैं, और वो कैंसर समटाइम्स दे स्प्रेड टू द बोन्स। एंड समटाइम्स क्या होता है कि पहले जो मेन कैंसर है, जो प्राइमरी कैंसर है, उसका पता नहीं होता है, पर वो सेकेंडरी बोन में जा सकता है। तो कुछ बार ये सेकेंडरीज, जो कैंसर शरीर कहीं और है, जो कहीं और स्प्रेड किया है, वो कई बार बोन पेन या बैक पेन की तरह प्रेजेंट कर सकता है। सो एक एल्डरली आदमी में कोई बहुत सीवियर बैक पेन जो कि काफी दिनों से चला आ रहा हो और बढ़ रहा हो, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अगर डॉक्टर ने एग्जामिन करके आपको एडवाइस किया है तो वी शुड गेट दैट डन। सो बेसिकली दिस वाज द थर्ड थिंग, दैट इज सेकेंडरीज। जो चौथी चीज है एंड विच यू वुड लाइक, दिस इज डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज साउंड करेगा सुनने में, बट वो भी बहुत कॉमन है एल्डरली में। कई बार डिप्रेशन से, डिप्रेशन लाइक हर एक बैक पेन का, ये कहते हैं कि बैक पेन, हर एक बैक पेन का, चाहे अपर बैक हो, चाहे नेक हो, चाहे लोअर बैक हो, स्पेशली लोअर बैक पेन का एक हमेशा साइकोसोमैटिक कंपोनेंट होता है। इन द सेंस many a times in the elderly, depression can itself give rise to any pain, more specifically back pain. So अपने आप को खुश रखना, अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को एक्टिव रखना, all these things they tend to reduce back pain. So as we can see here, like you see, these are the commonest cause in elderly which we just discussed. One was spondylosis, जो कि डिजेनरेशन से होता है, एजिंग के साथ होता है, जिसको हम 100% तो नहीं रोक सकते हैं, पर उसको हम एक स्टेज तक, उसको बढ़ने से कुछ हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं, और अपने पोस्चरल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज वगैरह के रेजिमेंट के साथ हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। ऑफ एंड ऑन एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर लेना जरूरी हो सकता है, पर पेन किलर्स का प्रोलॉन्ग्ड यूज इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज वी ऑल नो पेन किलर्स वगैरह लंबे लेने से किडनी और कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं। सो पेन किलर्स अंटिल लेस एब्सोल्युटली नेसेसरी हमें अवॉइड करनी चाहिए। आजकल बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं जो प्रोबब्ली आप सब जानते होंगे इनके बारे में, प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन वगैरह, जो काफी हद तक बैक से रिलेटेड पेन को बिना टिपिकल पेन किलर के साइड इफेक्ट के कम करते हैं, तो वो सब यूज कर सकते हैं।
Second thing which we talked about already is osteoporosis. Third thing which we talked about already is secondaries, especially from prostate. So the second part, the osteoporosis part, holds more good for males. ये osteoporosis और osteoporosis की वजह से बैक पेन ये फीमेल्स के लिए ज्यादा अप्लाई करता है, जबकि जो तीसरा पॉइंट है सेकेंडरीज स्पेशली फ्रॉम प्रोस्टेट, दिस इज मेल्स, क्योंकि प्रोस्टेट से में आती है और सेक्स का आना फीमेल्स में बोन सेकेंडरीज का रिलेटिवली अनकॉमन है एज कंपेयर टू मेल्स. एंड द फोर्थ पॉइंट व्हिच वी डिस्कस्ड वाज साइकोजेनिक डिप्रेशन. So basically this is again a common cause of back pain in elderly. Very So nice. these are things which we do while we examine the patient. This is more for clinical significance. Hello. Yes, Abhishek, Hello. please. Hi sir. So ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को. अगर पेशेंट हमारे पास बैक पेन से आ रहा होता है, जिसमें एक्सरे होता है, सीटी होता है, एमआरआई, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कभी एडवाइस करते हैं. और देयर इज वन इन्वेस्टिगेशन व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेसिफिकली हियर. ये ईएमजी कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी. एंड कई बार हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी और एनसीवी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी के साथ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को. और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन. हालांकि हमेशा मैंने भी देखा है कई बार प्रैक्टिस में कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और एमआरआई सब कुछ करा रखा होता है पेशेंट ने, लेकिन ईएमजी एनसीवी नहीं होता है पेशेंट के पास. सो ईएमजी एनसीवी इज अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन टू लोकलाइज द पॉइंट ऑफ पेन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एल्डरली लोगों में कई बार स्पाइन में ऊपर से नीचे तक डिजेनरेशन होता है. तो ऊपर से नीचे तक पूरी जगह डिजेनरेशन है, तो सबको हम रिवर्स नहीं कर सकते सर्जरी से या मेडिसिन से. उस पेशेंट को अगर पेन है और बहुत सीवियर पेन है, तो ईएमजी एनसीवी करके हम काफी हद तक लोकलाइज कर सकते हैं कि भैया ये जो हर जगह ऊपर से नीचे तक डिजेनरेशन है, इसमें कौन सा हिस्सा ज्यादा ट्रबलसम है, इसमें कौन सा हिस्सा ज्यादा दर्द दे रहा है पेशेंट को, और हम अपने अटेंशन को उस स्पाइन के उस हिस्से पे केंद्रित कर सकते हैं और उसको सही करने के लिए जो भी उपाय है, चाहे इंजेक्शन ब्लॉक्स होते हैं या जो भी सर्जरी है, वो प्लान कर सकते हैं. सो व्हाट आई वुड से इज ईएमजी एनसीवी हालांकि एक नेग्लेक्टेड इन्वेस्टिगेशन है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है बैक पेन का एग्जैक्ट कॉज रूल आउट करने के लिए. और आखिरी चीज जो बोन स्कैन है, बोन स्कैन भी कई बार कराते हैं, बट इसका ज्यादा रिलेवेंस जो है, अगर हम ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हो या सेकेंडरीज या किसी तरह कैंसर या रसौली या गठिया सस्पेक्ट कर रहे हो, तो बोन स्कैन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सो बेसिकली Thank you, Dr. रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग एमआरआई में देखेंगे. Yes. Sir, I think most of the general parts we have covered. So ये Yes. डिस्क ऐसा दिखता है बेसिकली, जो डिस्क निकल के नस को दबा रहा है एमआरआई में. So I would rather be interested in getting questions from you and answering them rather than Right. doing a monologue. I think that's very nice of you, Dr. Mishra. Thank you. And मेरा ख्याल हमारा जो मैसेज डॉक्टर मिश्रा ने दिया, that was very important. What I was looking for कि बैक एक के कारण जो हैं may not always be at the place जहां आपको दर्द हो रहा. You see, that's important. मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर एक्टर्स लोकल स्प्रे, वो वॉलनी जेल, वो समझते हैं कि वॉलनी जेल. अब मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर तो वीरेंद्र सहवाग या ऐश्वर्या राय आपके बैक की मसाज करे वॉलनी जेल से, तो आराम आ जाएगा. अपने आप करोगे या घर वाले करेंगे, तब कोई फायदा नहीं होता. So very important, you see these so many different causes for back pain. एक ही तकलीफ है, एक शिकायत है, लेकिन उसके कारण अलग अलग जगह से आ रहे हैं. So much so that even your mental health, a depression, anxiety can cause backache. So what is important for elders, जो हर लेक्चर में मैं इंसिस्ट करता हूं, अपनी शिकायत को बीमारी मत समझिए. I'll repeat this line. अपनी शिकायत को बीमारी मत समझिएगा. अगर बैक हो रहा है तो ये मत समझिए मुझे बैक एक की बीमारी है. No, it will always be important and useful for you to find out the cause of your complaint. और डॉक्टर मिश्रा ने देखिए 4 अलग अलग, आपको गर्दन में तकलीफ है, हड्डी में, और पेन आपको आपके पीठ में हो रहा है. So please don't, again warning for elders, no self medication and no self diagnosis.
Very important, disc. I'll just give a little example. डॉक्टर मिश्रा ने बताया, जो आप ये समझिए कि दो ईंटों के बीच में आप एक बैलून रख दीजिए पानी का भर के, तो वो बैलून उसको दोनों को पास नहीं आने देगा। पर कितना इंपॉर्टेंट है वो बैलून कि अपनी जगह से हिल गया तो दोनों ईंटें टकरा जाएंगी और आपको टूट जाएंगी। तो डिस्क इज अ वेरी कॉमन अकरेंस इन द एल्डर्स। डिजेनरेशन का क्या मतलब है? आप सबके लाइफ में आपने कभी ना कभी एक घर जरूर बनाया होगा या घर बनते देखा होगा। उसके अंदर एक छत डलती है जिसको लेंटर कहते हैं। लेंटर के अंदर सरिया डालते हैं और मसाला डलता है। तो अगर लेंटर कमजोर होना हो तो या तो सरिया कमजोर हो जाएगा या उसका मटेरियल कम हो जाएगा। इसी तरह दोनों में से कोई कम हो, हमारी हड्डी भी एक लेंटर है जिसके अंदर सरिया है और रोड़ी है। तो रोड़ी कम होना की बीमारियां अलग हैं और सरिया कम होने की बीमारियां अलग है। I now open the house for discussion and questions. Most welcome. Yes, Mr. Bambri. डॉक्टर अभिषेक, ये तीन चीजें लेमैन में बड़ी कॉमन है, L3, S5 और शटिका। इसको लेके वो आपस में डिस्कस करके कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। सर, शियाटिका ना बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इट्स अ लेमैन्स टर्म। सो शियाटिका एनी पेन फ्रॉम द बैक व्हिच इज गोइंग टू द लेग, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो डिस्क की वजह से हो, चाहे वो ट्यूमर की वजह से हो, चाहे मांसपेशियों के तनाव खिंचाव की वजह से हो, स्प्रेन की वजह से हो, कोई भी पेन जो टांग में जा रहा है लेकिन बैक से शुरू हो रहा है, उसको शियाटिका कहते हैं। सो ये शियाटिका इज जस्ट अ सिम्टम। जैसा सर बता रहे थे कि बैक पेन इज जस्ट अ सिम्टम, बैक पेन इज नॉट अ बीमारी। सो उसी तरह शियाटिका भी एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। तो बेसिकली हमें शियाटिका का कॉज पता करना होता है कि शियाटिका हो क्यों रहा है, जो कि एल्डरली में मोस्टली डिजेनरेशन की वजह से होता है। और ये L3, L4, L4, L5, L5, S1 जो बोल रहे हैं, ये बेसिकली स्पाइन के अलग अलग हड्डियां हैं। हमारे लोअर पार्ट में, लोअर वर्टेब्रा में, लंबर वर्टेब्रा कहते हैं, 5 अलग अलग हड्डियां होती हैं, L1, L2, L3, L4, L5। और लंबर वर्टेब्रा के नीचे सेक्रम होता है, उसकी पहली हड्डी S1 कहते हैं। तो L1, L2 के बीच में एक डिस्क होता है, L2, L3 के बीच में एक डिस्क होता है, वो बलून सर जो बलून बता रहे थे, L3, L4 के बीच में एक डिस्क होता है, L4, L5 के बीच में डिस्क होता है, और L5, S1 के बीच में एक डिस्क होता है। तो ये कौन सा डिस्क यूजुअली जो सबसे कॉमनली डिस्क निकलता है वो L5, L4 या L4, L5 कह लीजिए, या L5, S1 का होता है। तो L4, L5 या L5, S1 जो बोलते हैं, बेसिकली जो आपका डिस्क का लेवल है उसको डिनोट कर रहा है, उस लेवल का डिस्क डिजेनरेटेड है, और ये अल्टीमेटली शियाटिका कर सकता है। शियाटिका इज अ सिम्टम, एंड L3, L4 या L4, L5 या L5, S1 जो बोल रहे हैं वो उस लेवल का डिस्क है जो कि परेशान कर रहा है। जो हड्डियां हैं, हर हड्डी के बीच में एक डिस्क है। तो ये बताने के लिए कि कौन सी डिस्क है, वो कहें L4 या L5 के बीच वाली डिस्क, दैट इज व्हाट डिस्क। और शियाटिका, डॉक्टर मिश्रा ने कहा, जो दर्द पूरी टांग के अंदर आता है, नस दबती है। देखिए, आप सबको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर मिश्रा ने जो फोटो दिखाई थी कि दो हड्डियों के बीच में से एक तार निकलती है, तो हड्डियों के बीच में से जो तार निकलती है वही तारें मिलके हमारी सारे बाजू और पैरों के अंदर जाती हैं, जिससे हमको पता लगता है कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है, ये चुभ रही है, ये दर्द हो रहा है। वो सारी सेंसेशन जो है वो तारों से आती है, और तारें जब नप जाएंगी तो आपको दर्द होगा। तो ये वो डिस्क कहते हैं। भामरी जी जो अलग अलग चीजें बताई उन्होंने। यस माथुर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? दीपक माथुर जी। सर, मैं आई एम 75 years of age. यस। थोड़ा डायबिटिक भी हूँ, ब्लड प्रेशर भी है जी। और ये जो लोअर बैक का पेन है पिछले 4-5 साल से है, और क्या नहीं किया इसके लिए मैंने एक्सरे, MRI और EMG की बता रहे हैं डॉक्टर साहब, सब कुछ कराया। डॉक्टर बोलते हैं इट इज एज रिलेटेड डिजेनरेशन। ओके। विटामिन D भी सप्लीमेंट लिया है, एवरी मंथ एक टैबलेट खाता हूँ,
लेकिन सर मेरे को पेन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, और इन द प्रोसेस वो क्या थोड़ा चलने में भी दिक्कत होती है। माथुर जी, डॉक्टर मिश्रा ने एक बात कही थी कि पोस्चर, बैठने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मिश्रा प्लीज इस पे दोबारा थोड़ा सा रोशनी डालिए कि पोस्चर का, जैसे माथुर जी ने कहा मेरी सारी रिपोर्टें ठीक हैं तो भी मुझे कमर दर्द है। आफ्टर ऑल शिकायत ये बहुत कॉमन होती है एल्डर्स में कि सारे टेस्ट करा लिए तो भी दर्द है। तो इसमें पोस्चर का कितना रोल होता है डॉक्टर मिश्रा? सर ये सिर्फ पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्चर के साथ ना अगर आप एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी को कंबाइन करते हैं तो दोनों मिलके इट वर्क्स मच मच बेटर वे, इन अ मच मच बेटर वे। अब चूंकि सर आप लाइक यू हैव बीन सीइंग डॉक्टर्स और आपके सारे इन्वेस्टिगेशन हो रखे हैं और आपको डिजेनरेटिव चेंज बताया गया है, तो आपको मेडिसिन भी लिखी गई होंगी 100%। और मेडिसिन मोस्ट लाइक वही प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन, जैसे आप 4 डॉक्टर के पास जाओगे तो वो मेडिसिन फेर बदल के ना, वो सॉल्ट सेम ही होगा, वो ट्रेड नेम या ब्रांड नेम कुछ अलग अलग होंगे, घूम फिर के वही एक पेन किलर होता है, एक प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन होता है, नॉट होता है, साथ में कुछ विटामिन, कुछ कैल्शियम, कुछ विटामिन डी होता है। तो इससे बढ़ के, इन दवाइयों से बढ़ के जो अपने आप को हेल्प कर सकते हो, एक तो सर जैसा बता रहे हैं कि adopting correct posture, not to keep yourself hunched all the time, trying to keep a back, support at the back, trying to sit straight, sit upright, ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जैसे आई गिव एन एग्जांपल, हम कई बार ना फीमेल से कहते हैं मैम आपके लिए वॉक करना बहुत जरूरी है, या मैम आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तो उनका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होता है कि पूरे दिन तो किचन में खड़े रहते हैं। सो एक्चुअली शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि किचन में खड़ा रहना और एक्चुअली डेलिबरेटली वॉक करना और एक्सरसाइज करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मोर ओवर ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है बिकॉज यू आर डायबिटिक ऑल्सो, और डायबिटीज मोस्ट लाइकली हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग रहा हो। तो डायबिटीज में ना कई बार, जी हाँ सर, तो डायबिटीज में ना कई बार न्यूरोपैथी का कंपोनेंट होता है, जो भी वो भी सिमिलर होता है, बैक पेन का जो प्रेजेंटेशन होता है उससे मिलता जुलता होता है। और जब ये दोनों चीजें ना ओवरलैप करती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डबल क्रश फेनोमेनन। वो एक तरह से मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पे दो चीजें मिलके, एक और एक 2 नहीं कर रहा है, एक और एक 11 कर रहा है, तभी आपका पेन ज्यादा हो रहा है और मतलब आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि पोस्चर करेक्ट रहना, एक्सरसाइज करनी है, दिस विल ऑलवेज हेल्प सर। उसके अलावा अगर हाँ जी सर बताएं सर प्लीज। बोलिए। There is one more issue in my life. I have a daughter, 43 years of age. She is mentally handicapped, slightly mental retardation है. My always concerned about that. Can it be the cause for that? माथुर साहब, आप अगर ये बात ना बताते, मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आप ये बात ना बताते तो मैं डॉक्टर मिश्रा अभी बोलने वाला था कि माथुर साहब आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत कंसर्न्ड हो किसी चीज को लेके, और जो आपका आपने बिल्कुल सही डायग्नोज किया है। डॉक्टर मिश्रा ने अभी क्या बोला, चौथा कारण क्या बताया था कि when you are mentally occupied or mentally worried, you must get tired. So you are very correct, Mathur Sahab. Please, it's a matter of concern, and I'm very glad कि आपने ये शेयर किया और आपको ये समझ आई आज हम सब लोगों के साथ आपने शेयर करके। I feel very encouraged. You need to understand that you are mentally, when you are stressed, आपके muscles भी stress हो जाते हैं. I see. So it does make a difference. And yes, it does make a difference. If you allay your anxiety, it will help. It will certainly help. May not 100% ना कम हो, पर काफी % कम हो जाएगा if you try to, I mean, reduce this. To take help of a mental health physician and a counselor to help your muscles relax, ताकि आप उसको better look after कर पाए. Okay. And आप अपने इमोहा के representative को बात करिए. I will guide you in that. Dr. Mishra, another thing I wanted to ask before Jagadri ji, before that, very common elders come and say, मुझे जलन हो रही है, पीठ में जलन हो रही है। अभी एक पूछ रही थी, घुटने में जलन हो रही है। Now,
the complaint of jalan, वहां पे आग तो लगी नहीं, तो this complaint of jalan, what does it indicate in terms of a back problem? Why do people have सर these इसका states of burning? सर इसका आंसर तो आप खुद ही पहले दे चुके हैं सर। आप जो बता रहे थे ना कि नर्व रूट्स निकल रही होती हैं, जो नसें जो तारों की तरह धागे की तरह निकल रहा होता है, दे आर नर्व रूट्स। उसमें ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी एक कंपोनेंट है, बेसिकली सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सेंसेशन या पैरास्थीसिया इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। बेसिकली वो नस पे कहीं दबाव पड़ रहा है, तो सपोज वो एक मोटी रस्सी है, उस रस्सी में कई सारे धागे हैं, हर एक धागे का अलग काम है। कई बार जो है सेंसेशन वाला, कई बार जलन वाला धागा दब रहा है, कई बार ठंड वाला धागा, कई बार गर्मी वाला। सो कौन से धागे में ज्यादा परेशानी हो रही है, उस हिसाब से सिम्टम फील होता है। Very good. इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द न्यूरल कंप्रेशन। Everybody listen. अगर आपको जलने की सेंसेशन है, that actually is a pain. वो एक्चुअली बीमारी है आपके नसों के दबाव की। लोग क्या करते हैं, मेरे को जलन हो रही है, मैं ठंडी चीजें खा रहा हूं, मैं बड़े दिन से दही खा रहा हूं क्योंकि मुझे जलन हो रही है। इट इज नॉट ठंडा गरम, it is a compression of your nerves which is causing sensation. That is important. Yes, Jagadri ji, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं छोटी सी चीज पूछ रहा था कि सीनियर पर्सन, आई एम 82.5 years, तो फॉरवर्ड बेंडिंग में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? अगर करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं सर, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कुछ भी कर सकता है सर। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। कुछ लोग बहुत खुशनसीब होते हैं और आप उन खुशनसीब लोगों से हैं कि आपको इस में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, so you can do whatever you like. As such, there's no restriction. You should be happy, you should be enjoying your life. That's the most important thing, sir. एक छोटी सी बात और पूछना था डॉक्टर साहब, ये हाँ सर बताइए। इट नॉट रिलेटेड टू एल्डर्स रियली, बट द वुड बी एल्डर्स के लिए पूछ रहा हूँ, फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रैंडचिल्ड्रन। आजकल जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं सारा, तो इनको कोई ऐसा है पोस्टरल एडवाइस हो सकती है जो कि they don't become an elder with back pain and all that? Nice one, nice one. सर ये बहुत ही कॉमन जो आप पूछ रहे हो ना सर, ये आजकल के ओपीडी में जो हम 10 पेशेंट अगर 100 पेशेंट देख रहे हैं ना, तो 60-70 इसी एज के होते हैं, 15 साल 20 साल के। अच्छा। और ये 12-12 घंटे ना पूरे उस पे सिस्टम पे बैठे होते हैं, बीच में उठते नहीं है। और 6 महीने, साल, 2 साल के बाद जो है, आप तो अभी झुक पा रहे हो, वो तो इस 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में झुक नहीं पाते हैं। तो बेसिकली वैसे बहुत सारी चीजें हैं सर, लेकिन 2-3 चीजें बहुत आसानी से फॉलो की जा सकती हैं। एक ये है कि एक तो लगातार प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें। बेसिकली बैठना भी हो तो वैसे तो किताबें कहती है कि आधा घंटा, बट प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। एटलीस्ट 45-50 मिनट से ऊपर, 1 घंटे से ऊपर लगातार नहीं बैठना है एक जगह पे। दे हैव टू गेट अप, मूव अराउंड फॉर 5-10 मिनट्स, स्ट्रेच करें थोड़ा सा, थोड़ा घूमे फिरे, फिर उसका ब्रेक लें, उसके बाद आके बैठे। पहली चीज बहुत जरूरी है कि लगातार बैठना नहीं होता, प्रोलॉन्ग सिटिंग। सेकंड जो चीज है वो बहुत जरूरी है कि अगर आप सिस्टम पे या स्क्रीन पे लगातार काम कर रहे हो, तो आपका सिस्टम या स्क्रीन जो है ना आपके आई लेवल पे होना चाहिए। तो अगर झुक के आप काम करेंगे तो दैट विल एक्सरबेट द पेन, और वो डिजेनरेशन बढ़ा देता है। तो बेसिकली क्या है कि मॉनिटर हो या लैपटॉप हो, तो उसके नीचे कुछ सपोर्ट डाल के उसको आंख के सामने रख सकते हैं। और तीसरा, बैक रेस्ट यूज करना, कि अगर आपको बैठने का ही काम है तो आप कंफर्टेबल सीट हो, बैक रेस्ट हो, ताकि स्पाइन को लगातार कुछ सपोर्ट मिलता रहे। तो ये 3-4 बहुत कॉमन चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, और लोगों को ये ध्यान देना चाहिए। ये करने से जो स्पाइन का प्रीमैच्योर वेयर एंड टेयर है वो कम हो जाता है। And I've noticed another thing, जगाधरी जी, एक चीज और आप नोटिस करेंगे डॉक्टर मिश्रा, ये जो यंग जनरेशन को बहुत देर कंप्यूटर पे काम करते हैं, they are often take cold drinks. Right. Now, हर कोल्ड ड्रिंक में कैफीन होती है। अच्छा। Right. और कैफीन ये ज्यादा लेके, कैफीन का इफेक्ट मसल्स पे अर्ली फटीग होता है। And if for some reason they are smokers, so their diet is also very poor, which is affecting their muscle strength. अच्छा अच्छा। So posture and diet both are creating problems for this generation. Thanks to Right. डॉक्टर साहब, I have a question. Thank you, doctor. जी सर। डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि वॉकिंग एंड एक्सरसाइजेज आर इम्पोर्टेंट। मैंने देखा अगर मैं वॉकिंग करता हूँ तो मेरे को पेन
उससे एग्रीवेट होता है। हाँ, ये बताइए मिश्रा जी, वॉकिंग करने से कहाँ पेन एक्टिवेट होता है? बैक पेन। That usually डॉक्टर मिश्रा शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। देखिए, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आपने शिकायत बताई। इट हैपन्स जब भी बैक पेन हो, पहला क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि ये चलने से बढ़ जाता है या चलने से कम हो जाता है। सेम वे ये रेस्ट करने से ज्यादा होता है कि रेस्ट, कई ऐसे पेन्स हैं जो चलने पे कम हो जाते हैं, जैसे ही आप रेस्ट करो तो बढ़ जाते हैं। सो जो पेन्स रिलेटेड टू मसल्स एंड देयर लिगामेंट्स है, they usually get better when you walk. Bony pains usually increase with walking. So if your pain जो walking से बढ़ रहा है, it is usually to do with pressure on the bone. Whereas if your बढ़ने से जो stiffness होती है bone की, जो ligament की, वो कई दफा बढ़ जाती है. So it doesn't matter if it is getting worse on walking. Basically जो आपका कारण है वो जो लिगामेंट क्या होता है, डिस्क जैसे हमारा कान का मटेरियल है ना जी, ये सॉफ्ट वाला ऐसा टाइप ऑफ मटेरियल होता है, तो वो अगर दबे, हड्डी नहीं दबती, वो दबे तो पेन नर्व्स का होता है. अंडरस्टैंड, द पेन इज ऑलवेज इन द नर्व. सो इफ यू आर वॉकिंग and this is getting pressure on the nerve, then you will get more pain. Yes, Rashmi ji. Good evening, doctor. I just wanted to ask, previously I was sitting on the bed and watching my television. So I started having a little bit of pain. Then I started sitting on a chair. I have a very small question. Is it better to sit on a hard chair or maybe decathlon wali jo kapde ki chair hai, which goes down like this? Which one is better? Which one do you recommend? Rashmi ji, very nice, very good question, because जो posture है, हम posture को importance दे रहे हैं. The posture, it doesn't matter उसका base गद्दी का कैसा भी हो, लक्कड़ का भी हो, लेकिन जो उसकी back है वो recline नहीं होनी चाहिए, वो straight होनी चाहिए. Okay. So that means कि अगर कपड़े की जो hammock होता है, that is for those people जिनको बैक एक नहीं है. So that is important to understand. Your back should be more firm than the floor. You may have a soft floor, but your back should be firm. That is important. Thank you, doctor. Welcome, ma'am. Doctor, I have two questions. One जी is, मैम. my close friend is having the cancer for 2-3 years. Now she is complaining bone pain और वो पहले जैसे चलता नहीं. Then she went to orthopedist and this doctor must be knowing about her cancer, but he is saying that I cannot replace hip at this age, so he will be giving some injection for the pain and all. जी. So that means it is connected with the cancer what she has. See, the cancer pain जो होता है, कैंसर का पेन इज लाइक ए दीमक. वो दीमक जो है अंदर घुस जाता है और जाके जो नर्व्स होती हैं उनको जाके वो दबा देता है. सो कैंसर पेन इज अ वेरी डीप पेन एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी ट्रबलसम. सो इट नीड्स अ हायर लेवल ऑफ पेन टैबलेट्स देन एवरेज टैबलेट्स. Must be she will be in. Yes, cancer pain is very painful. Very painful. Yeah. Sorry sir, मैं interrupt कर रहा हूँ. Sorry, मैं sir. Yes, Dr. Mishra. Yes, Dr. Sorry sir, my laptop battery got discharged and that's why. हाँ बोलो. And thanks for standing by me. आपने मेरे ख्याल से सारे clarification दे दिए. वो सर कुछ पेन की बात कर रहे थे जब हमने डिस्कनेक्ट किया था. The gentleman was saying that when he walks, he gets more pain. So pain in which area, sir? Pain in knee, pain in leg, pain in back. Back pain increases. Yes. So there is something called claudication. So it might just be a sign of stenosis. ये तो इसके लिए ना अगर उनका बैक पेन बढ़ता है चलने के बाद,
तो आइडियली एक एटलीस्ट बेसिक एक्सरे तो उनको करा लेना चाहिए अगर पेन अनबेरेबल टाइप का होता है, तो क्लॉडिकेशन को उससे हम रूल आउट कर सकते हैं। That's it. डॉक्टर साहब, एक मेरा क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? हाँ प्लीज सर, Please, प्लीज। please. I would तो मेरे को पीछे 2-3 साल बैक पेन रहा है, बहुत ज्यादा स्पाइन की बड़ी प्रॉब्लम रही है। यहाँ तक डॉक्टर ने बोला ऑपरेट करा लो, लेकिन बाद में मुझे सजेस्ट किया ऑपरेट नहीं कराओ, फिजियो वगैरह कराने से ठीक हो जाएगा। तो मैंने बहुत फिजियो करी, वॉक करी, तो मैं 80% बेटर हो गया। हालांकि अभी मेरी टंग टूट गई, वो डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट प्रॉब्लम आ गई। लेकिन उसके बाद काफी ठीक होने के बाद मेरे जो पाँव हैं उनमें झंझनाहट या जिसको कहते हैं ना करंट टाइप, वो नीचे वो नहीं गया। बाकी काफी ठीक हो गया मैं, ये नहीं कि टोटल ठीक हो गया, लेकिन स्पाइन मेरी जो L3 L4 जो था, एक्सरसाइज वगैरह, फिजियोथेरेपी, चलने से, मैं योगा भी करता रहा सारी उम्र, तो वो काफी ठीक हो गया। लेकिन वो झंझनाहट या नीचे जो करंट पैर के अंदर आता था, वो टोटल नहीं ठीक हो रहा। वो क्या रीजन है? सर हम जब नस की बात कर रहे हैं ना, नस जो सर भी बात कर रहे थे, या धागा या नस या नर्व रूट या नर्व या करंट, इलेक्ट्रिक वायर की बात कर रहे थे, तो उसके ना 3-4 कंपोनेंट होते हैं, उस 3-4 चीजें होती हैं। एक तो वो मूवमेंट करती है, मोटर नर्व्स कहते हैं। दूसरा सेंसरी कहते हैं, सेंसरी वाले जो सेंसेशन ले जाते हैं, चाहे वो टच का सेंसेशन हो, चाहे गर्माहट का, चाहे ठंड का हो, चाहे सुनपन, करंट, ये सब चीजें हो। और तीसरी चीज जो होती है मोटर सेंसरी के अलावा ऑटोनॉमिक होती है। ऑटोनॉमिक में जैसे यूरिन के पास करने की फीलिंग या स्टूल के पास करने की फीलिंग। तो कोई भी चीज जब ठीक होती है इन तीनों में से, तो ठीक होने में जो सबसे मोटर से ज्यादा सेंसरी वाली जो कम नर्व होती है ना, उनको ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। और इसीलिए आपका हो सकता है दर्द जल्दी चला गया हो, पर ये जो झुंझुनाहट है या करंट आ रहा है, इसको कई बार सालों साल लग जाते हैं पूरी तरह ठीक होने में। और कुछ बार अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरह शायद 100% ठीक होता भी नहीं। उसकी वजह ये है कि नसों पे अगर बहुत लंबे समय दबाव रहा है, तो उसके ना कुछ हिस्से जो है वो बेसिकली उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो कई बार वो हो सकता है 70-80% ठीक हो जाए, पर 100% ठीक नहीं भी होते हैं। तो टाइम के साथ पता लगता है, और ये सेंसेशन जो है अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होता है। इसको आप हेल्प करने के लिए विटामिन बी वगैरह आपको शायद डॉक्टर ने लिखा ही होगा, B6 B12 वगैरह थोड़ा और लंबा ले सकते हो, उससे शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए। बट उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ये सेंसेशन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कोई उपाय नहीं है। मेरा ख्याल व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि झंझनाहट, ये सारी चीजें, हम डॉक्टर और मैं, हम दोनों एक नस की बात कर रहे हैं, नस की। देखिए, मैंने बहुत पहले, मैं शायद नेक्स्ट वीक आपको फिर एक बार दिखाऊंगा। हम सब क्योंकि एल्डर जो है वो खुद ही शिकायत करते हैं, मेरी नस दब गई। अब ऐसा है कि नस जो है, आपने अगर अपने घर में बिजली की तारें बनाई होगी, जो डॉक्टर मिश्रा ने बताया, तो 7x22 या 3x22 की कहते हैं। तो एक तार के अंदर छोटी छोटी 3 तारें या 7 तारें होती हैं, और हर एक तार का काम अलग है। एक को गर्म सेंसेशन पता लगती है, एक को ठंडी, एक को पेन, और जौन सी दबेगी वो वाली तकलीफ आपको होगी। तो बॉडी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाई है भगवान ने ना। पता नहीं, हो सकता है उस दिन वो फास्ट पे थे और उनको ठीक तरह खाना नहीं मिला, तो उन्होंने बहुत ही ध्यान से कॉम्प्लिकेटेड बॉडी बनाई है हमारी। एनीवे, 2 चीजें इंपॉर्टेंट मैसेज जो आज हमने देनी थी। ए बैक पेन कैन बी मोर देन ए बैक पेन। रिमेंबर, कमर दर्द केवल कमर की बीमारी नहीं होके कहीं और की भी बीमारी हो सकती है, उसको लापरवाही मत करिए। नंबर 2, डीजेनरेशन और ऑस्टियोपोरोसिस एल्डर्स में बहुत कॉमन है, एंड ये 2 चीजें एल्डर्स के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि एल्डर्स के अंदर अगर 65 साल से ऊपर 100 फ्रैक्चर्स होते हैं, तो उसमें से 45 फ्रैक्चर बच सकते हैं अगर आप डीजेनरेशन और ऑस्टियोपोरोसिस का ध्यान रखें। That is the important issue which I wanted to bring to you. Thank you very much, Dr. Mishra. Thank you, sir. Thank you. ऑस्टियोपोरोसिस का ध्यान कैसे रखेंगे? इसका ऑस्टियोपोरोसिस का डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सबको पहले एक डेक्सा स्कैन करना चाहिए। ब्लड रिपोर्ट पे मत डिपेंड करिए। उन्होंने क्लियर कहा है डेक्सा स्कैन कराइए। डेक्सा स्कैन के बाद उस वैल्यू के मुताबिक अपनी दवाई खाइए। राइट।
लापरवाही ये मत करिए। लोग अपना ब्लड रिपोर्ट लेके घूमते रहते हैं, मेरा D3 इतना आ गया। It is not, Dr. Mishra, do you agree that D3 level is not a foolproof diagnosis for osteoporosis? It is not, helpful in a major way. Absolutely not. So please, especially females over 60, DEXA scan should be done for sure. At least one baseline. DEXA scan कराइए और अपनी दवाई लीजिए। Osteoporosis का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप what is it? DEXA. It is DEXA scan. Yes. DEXA. DEXA. Right? Okay, Dr. Mishra, thank you very much. Doctor, please. बोलिए। I could not get the name of the medicine for osteoporosis. No, I don't think Dr. Mishra has given any medicine. It will depend upon vitamin D3 या दूसरी होती है, but it will depend upon your DEXA scan. Absolutely, DEXA scan score. Depend upon my DEXA scan score, ma'am. DEXA scan score. DEXA scan में क्या score है? ठीक है? So, डॉक्टर, जो ये घुटने में जलन बताए वो नर्व्स का बताया। Yes. तो उसके लिए डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन कम ज्यादा हो रहा है बताया, अभी पूछी तो। नहीं, पर वो क्यों हो रहा है, पहले क्यों का, आप पहले क्यों का जवाब लीजिए। तो उसके लिए ये टेस्ट कराएं। उसके लिए DEXA स्कैन कराइए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। राइट, थैंक यू डॉक्टर मिश्रा एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक हम एंजाइटी पे एक डिटेल्ड डिस्कशन करें, ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ एंजाइटी सेपरेटली डिस्कस करें। लेकिन आज आप सब अपने सीधे खड़े होके अपने कमर का ध्यान रखिए और डॉक्टर मिश्रा को याद करिए, उन्होंने क्या बोला है। DEXA स्कैन करिए, केवल दवाई पे मत डिपेंड करिए। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you all. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. Yeah, thanks.